Hello students, welcome to business studies class. Hope all are enjoying the vacation. Okay, vacation के साथ में हम पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी enjoyment के साथ करेंगे तो अच्छा लगेगा. Okay, now we'll move on to the topic. Today I am going to teach. Today I am going to discuss scientific techniques. Already in previous class we discussed about the scientific management developed by F.W. Taylor. So F.W. Taylor given some techniques which is adopted in the organization for the productivity or for the achievement of goals. Okay, so under the scientific techniques there are different techniques are there: functional foremanship, standardization and simplification, work study, differential piece weight system, mental revaluation. So today I am going to discuss functional foremanship. So first topic is functional foremanship. So what is functional foremanship? Taylor suggested that the factory should be divided into two groups. That is, one is production department, another one is planning department. So why Taylor suggested this? That Taylor felt that the workers are free from the burden of planning. The workers must concentrate on the work only and production. They concentrate on work and production. So here Taylor suggested that the workers should concentrate only in the work and production. So for this Taylor thinks that there must be some experts, that is functional foremen or foremen are known as superiors. So Taylor suggested that there must be foremen, those who guide the workers or instruct the workers for the production. Okay, so here Taylor suggested that at least minimum 8% must be there, that is 8 foremen must be there, 4 under each department. So Taylor suggests that a person, those who are under the functional foremanship, the person must be educated, honest, intelligent and specialized person. That we can't expect that all the things are found in one person. So for that only Taylor suggested that expert जो है अलग अलग से रहना चाहिए. That is 8 expert को सजेस्ट किए हैं. 8 expert जो है अलग अलग क्वालिटी के साथ रहेंगे, then automatically हम क्या कर सकते हैं, काम को easily कर सकते हैं. So here the division is there. Factory manager, that is factory is divided into two groups. One is planning in charge, another one is production in charge. Under the planning in charge there is a route clerk, instruction card clerk, time and cost clerk, disciplinarian. Under the production in charge, gang boss, speed boss, repair boss and inspector. So the persons, those who are here, that is under the planning department 4 foremen are there, and under the production department 4 foremen are there. The total 8 foremen are there. The 8 foremen are going to instruct the worker for the production. Okay. So here route clerk. What is the work of the route clerk, or what is the responsibility of the route clerk? It is the responsibility of this foreman that he has to set up the sequence of the work. So what is the sequence of the work? Organization में हम बहुत सारा वर्क हम लोगों को करना होगा. So here there must be a sequence, that is first which work has to be completed first, which work has to be proceed next. So ये जो है वहाँ पे sequence रहना चाहिए. So that sequence will be set up by the route clerk. Then next come to the instruction card clerk. Here it is the responsibility of this foreman, that is instruction card clerk. He has to instruct and guide the workers for the performance of the job. जो भी जॉब हम लोगों को दिया गया है, जो भी वर्क हम लोगों को दिया गया है, ये वर्क को कैसा हम परफॉर्म करेंगे, ये जो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हम लोगों को बताएंगे. The next is time and cost clerk. So here time and cost clerk, that is this person or this foreman has to set up the time of starting and completing the task. जो भी task हम लोगों को दिया गया है, that is जो भी task worker को दिया गया है, वो task जो है कब start करेंगे and कब complete करेंगे, ये जो है ये clerk बताएंगे. The next is the disciplinarian. So what is the duty of the disciplinarian, or what is the responsibility of the disciplinarian? Here it is the responsibility of this person, this foreman, that he has to see whether the task is according to the
ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक वे, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम चल रहा होगा, दैट जो भी काम होगा वो सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए. सो तभी क्या हो सकता है, डिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है. सो ये डिसिप्लिनेरियन क्लर्क का काम होगा या डिसिप्लिनेरियन फोरमैन का काम होगा. ही हैज़ टू सी वेदर द जॉब्स आर परफॉर्मिंग ऑर्डरली और इन सिस्टमैटिक मैनर. Then come to the production department. Production in charge, under the production in charge, again 4 foremen are there: gang boss, speed boss, repair boss and inspector. What is the duty of the gang boss? Gang boss, here gang boss, it is the duty of the gang boss or it is the responsibility of the gang boss. Before starting the work, the gang boss has to ensure that all the things are available or not, that is required machinery, required tools, required resources, all should be there. So ये कौन ensure करेंगे, gang boss ensure करेंगे. तो what is the speed boss? Speed boss fix the time, that is completion. जो भी हम लोगों का काम है वो timely complete हुआ है कि नहीं, ये देखेंगे speed boss. Then what is the repair boss? What is the responsibility of the repair boss? Here it is the responsibility of the repair boss that he has to ensure that the machineries are kept ready for work. Okay, next is inspector. What is the duty of the inspector? He has to check the quality of the work, that is जो भी work चल रहा है वो according to the planning और according to the quality है या नहीं है, ये सब जो है instruction जो inspector है वो inspector देखेंगे. So this is the functional foremanship. So what happened when we apply the functional foremanship? Functional foremanship को हम apply करेंगे, then automatically वहाँ पर क्या हो सकता है, आपका स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो सकता है. स्पेशलाइजेशन वाई? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन, देयर इज इन एवरी पर्सन 8 persons are there. 8 persons are having different qualification, different qualities. According to that, each and every person having their own specialization. So specialization के साथ में काम करेंगे, सिंगल वर्क को लेके वो काम करेंगे, then automatically they will create efficiency in the work. देन उनका एफिशिएंसी के साथ में वो वर्कर्स को गाइड करेंगे, देन ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्शन जो है हम दे सकते हैं, प्रोडक्टिविटी में जो है वर्कर्स को जो है कॉन्सेंट्रेट करा सकते हैं, जिसके थ्रू स्पेशलाइजेशन वहाँ पर भी होगा. ओके, सो दिस इज द फंक्शनल फोरमैनशिप डेवलप्ड बाय F.W. Taylor. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. ऑलरेडी वी डिस्कस्ड 14 प्रिंसिपल्स. वहाँ पर भी हम देखे थे कि कुछ एक प्रिंसिपल्स में हम लोग देखे थे लाइक रिसीविंग कमांड. Okay, so unity of command. Now the question is what, whether all the that is principles of F.W. Taylor and the scientific techniques, ये दोनों को एक ही जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं? No. क्वेश्चन का आंसर होगा no. Why? Where the unity of command, the principle of unity of command is applied, सो उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम फंक्शनल फोरमैनशिप को अप्लाई नहीं कर सकते. सो क्यों? यूनिटी ऑफ कमांड आपको ये बता रहा है, द वर्कर शुड रिसीव कमांड फ्रॉम, दैट इज वर्कर शुड रिसीव कमांड फ्रॉम ओनली वन बॉस. बट हियर फंक्शनल फोरमैनशिप आपको ये बता रहा है मिनिमम 8 persons रहेंगे जो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे. सो जहाँ पे हम फंक्शनल फोरमैनशिप को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड को अप्लाई नहीं कर सकते, या यूनिटी ऑफ कमांड जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे हम फंक्शनल फोरमैनशिप को अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, आई थिंक यू गॉट दिस. Okay, we will move on to the next technique, that is standardization and simplification of work. Okay students, next we move on to the second technique, that is standardization and simplification. So standardization and simplification, Taylor suggests that every organization must follow the standardization and simplification. So we will let us see the what is standardization. Taylor suggests that there must be a standardization in each activities of the business process. That is, जो भी process of business का करेंगे सभी process में आपको standardization रहना चाहिए. Right from the selection of tools, machineries, equipments, means also. So सभी में अगर आप एक standard set करेंगे so automatically there will be no confusions. आप क्या कर सकते हैं, easily work को
कंप्लीट कर सकते हैं. सो स्टैंडर्डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. आप टूल सेलेक्ट करेंगे, आप कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए अगर स्टैंडर्ड मशीन्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल आप सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, सही प्रोडक्शन दे सकते हैं, सही तरह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स जो होगा वो गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं. एंड अदर थिंग, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है ओनली क्वालिटी प्रोडक्ट. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स आपको प्रोडक्ट का अलावा, दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट के अलावा आपको साइज में भी स्टैंडर्डाइजेशन लाना चाहिए. साइज एंड अदर थिंग्स जो भी है उसमें भी आपको क्या करना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन लाना चाहिए. लाइक टाइप है, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट है, सो टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, साइज ऑफ द प्रोडक्ट एंड अदर थिंग्स जो भी होगा इसमें भी आपको क्या करना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन लाना चाहिए. सो ये सभी चीज़ में आपको स्टैंडर्डाइजेशन लाना चाहिए. एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट करना चाहिए. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में, लाइन ऑफ द प्रोडक्ट आप जो भी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसका लाइन ऑफ द प्रोडक्ट, मैन एंड मशीन सभी में आप स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, देन ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, जो आपका गोल होगा वो गोल्स को आप इजीली अचीव कर सकते हैं. नाउ टेलर ये बता रहे हैं आप अगर स्टैंडर्ड लाना चाहते हैं, यू हैव टू दैट इज क्रिएट अ मेथड. सो ये मेथड कहाँ से क्रिएट होगा, थ्रू द वर्क स्टडी. वर्क स्टडी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में आप स्टैंडर्ड को क्रिएट कर सकते हैं. सो स्टैंडर्ड को आप क्रिएट करने से ये क्या कर सकता है, आपका जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट होगा उसमें जो भी आप रिडक्शन करना चाहते हैं वो सभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें रिडक्शन कर सकते हैं. लाइक कॉस्ट एंड अदर थिंग्स जो भी होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिडक्शन कर सकते हैं. सो दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन. एंड व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन. सो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या चाहते हैं, लाइक टेलर ये सजेस्ट कर रहे हैं आपको सिंप्लीफिकेशन लाना चाहिए. सिंप्लीफिकेशन मीन्स यहाँ एलिमिनेटिंग द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट. लाइक आप जो है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जो है बहुत सारा प्रोडक्ट में अगर ध्यान देंगे, दैट इज प्रोडक्शन जो है लाइन ऑफ प्रोडक्ट या वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आपके पास है. लाइक एक ही प्रोडक्ट, लाइक आप ले लीजिए नोटबुक. सो कंपनी इज प्रोड्यूसिंग नोटबुक्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ नोटबुक्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, then ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप कहीं पर भी कंसंट्रेशन नहीं कर सकते. when you are producing different types of product, different variety of products, then definitely there may be machinery, that is different types of machinery आपको चाहिए, cost उतना ही आपको spend करना होगा, and other machineries, equipment, ये सभी में जो है आपको ज़्यादा spend करना होगा, raw materials लेने के लिए आपको ज़्यादा spend करना होगा. and other thing is what, when you are spending more expenses, then automatically क्या होगा, वहाँ पे quality क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा. बट हम क्या बोले हैं कि लाइक क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि आप प्रोडक्शन जितना ज़्यादा देंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आप जितना प्रोडक्शन दे रहे हैं उतना जो है आपका प्रोडक्ट जो है बाहर सेल हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट मे बी दैट इज़ आइडल प्रोडक्ट हो सकता है, आपके पास इन्वेंट्री रह जाएगा, स्टॉक आपके पास रह जाएगा, बिकॉज अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देंगे. सो वेरियस प्रोडक्ट, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट जहाँ पे आप प्रोड्यूस करेंगे, डेफिनेटली वहाँ पे क्वालिटी जो है रिड्यूस हो जाएगा. सो क्वालिटी हम चाहते हैं कि क्वालिटी को एक्सर्च करें, क्वालिटी ज़्यादा दे, क्वालिटी प्रोडक्ट ज़्यादा दे. इफ़ यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस करना चाहिए. दैट इज द सिंप्लीफिकेशन. सो रिडक्शन इन द डाइवर्सिटी, लाइन ऑफ प्रोडक्ट, नॉट ओनली द लाइन ऑफ प्रोडक्ट. आप साइज में आप देख सकते हैं, आपको जो आप डिमांड जिसमें ज़्यादा होगा, जो प्रोडक्ट में डिमांड ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट को आप रख सकते हैं. देन अदर थिंग्स जैसा साइज़ होगा, साइज़ में आप डिफ्रेंशिएशन ला सकते हैं. इस तरह बहुत कुछ आपको देखकर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. सो सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही है कि आप जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, विच इज़ नॉट गोइंग सेलिंग इन द मार्केट, जिसका डिमांड मार्केट में नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है वो प्रोडक्ट को आप प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. एंड जो प्रोडक्ट आप देंगे उसमें आप कंसंट्रेशन करके क्वालिटी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करके सेल कर सकते हैं. सो दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. Okay students, next we move on to the third study, that is work techniques, work study. So under the work study there is four techniques are there. One is method study,
motion study, time study and a fatigue study. So first we will discuss method study. What is method study? So method study is here. Taylor suggested that for the production, the organization has to select one best method, and the best method which minimizes the cost and maximize the productivity. So ये method, ये जो best method होगा ये कैसा हम ला सकते हैं? So टेलर अब यहाँ ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं लाइक मेथड स्टडी में आप जितना मेथड में आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उतना मेथड आप प्रोडक्शन कर लीजिए, ट्राई करिए आप जितना मेथड्स आप कर सकते हैं उतना मेथड आप ट्राई करिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर जो प्रीवियस जो मेथड है वो मैनेजर का वो प्रीवियस मेथड को ही आप सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। बेस्ट मेथड आपको सेलेक्ट करना है। सो व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट अ बेस्ट मेथड, ऑटोमेटिकली क्या करना चाहिए, डिफरेंट मेथड होगा, वो डिफरेंट मेथड से हम लोगों को वन बेस्ट मेथड सेलेक्ट करना होगा। सो फादर टेलर सजेस्टेड दैट आप वेरियस मेथड्स को अडॉप्ट करिए एंड वेरियस मेथड से आप प्रोडक्शन करिए, उसमें से आप फाइंड आउट करिए, ऑब्जर्व करके आप फाइंड आउट करिए विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो हियर द बेस्ट मेथड वो होना चाहिए जो मेथड आपको प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है एंड कॉस्ट कम हो रहा है। जितना भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है वो अवेलेबल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन ज़्यादा और कॉस्ट कम यूज़ हो रहा है, वो मेथड को आप बेस्ट मेथड में आप सेलेक्ट करेंगे। सो दैट इज़ द मेथड स्टडी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. A shoe manufacturing company has to first decide what type of method he has to adopt to produce the shoes, whether he is going to labor intensive method or capital intensive method. So labor, that is two methods are there. Example के लिए मैं बोल रही हूँ, there is two methods, labor intensive method and capital intensive method. Labor intensive method आप जानते ही हैं, लेबर्स को रख के हम लोगों को काम करना है. Capital intensive method means here machinery, we use machinery for the production. So here two methods are there. Now it is the duty of the organization, or it is the time of the organization which type of method or which method the organization is going to adopt for production of shoes. Okay, now इसमें हम लोगों को ये देखना होगा the method which is the that is whether the labor intensive method or capital intensive method, the method which gives minimum cost, थ्रू विच मिनिमम कॉस्ट आपको खर्चा होगा, मिनिमम कॉस्ट आपको स्पेंड करना होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन आप देंगे, वही मेथड को आप फॉलो करेंगे. सो दैट इज नोन एज अ मेथड स्टडी. सो एक मेथड को फाइंड आउट करने के लिए द पर्सन हैज़ टू दैट इज ट्राई वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस मेथड्स. फ्रॉम द वेरियस मेथड वन बेस्ट मेथड हैज़ टू बी सेलेक्टेड, दैट इज नोन एज अ मेथड स्टडी. ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मोशन स्टडी. ओके, व्हाट इज मोशन स्टडी? वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं, दैट मूवमेंट्स, मोशन इज नथिंग बट द मूवमेंट्स. ओके, सो मूवमेंट, वट एवर द मूवमेंट्स, दैट इज एक पर्सन जॉब परफॉर्म करने के टाइम कितना मूवमेंट्स कर रहे हैं, सो वो मूवमेंट्स को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे. सो टेलर सजेस्ट दैट वी हैव टू ऑब्जर्व द मूवमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर जॉब. सो कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे मूवमेंट को? दैट इज इसलिए हम लोग को मूवमेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए, लाइक प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या है, इंसिडेंट मूवमेंट क्या है, ये हम लोगों को पता करना है. सो वाई, ये क्यों हम लोगों को करना चाहिए? लाइक डिफरेंट मूवमेंट्स आर देयर, उसमें एक्चुअल प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या है वो हम लोग को फाइंड आउट करके जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है इसको एलिमिनेट करना होगा. क्योंकि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट इट इज वेस्ट द टाइम. ओके, टाइम को वेस्ट कर रहा है. सो वो मूवमेंट को हम लोगों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है. देन नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों को जो भी अरेंजमेंट्स है वो अरेंजमेंट करना होगा. सो फॉर दिस टेलर सजेस्टेड दैट ये जो भी मतलब मोशन स्टडी होगा, ये मोशन स्टडी जो है इसको भी हम लोगों को क्या करना होगा, लाइक ऑब्जर्व करना होगा. सो ऑब्जर्व कैसे करेंगे? एक एवरेज वर्कर को हम लोगों को लेना होगा. एवरेज वर्कर को लेकर हम लोगों को क्या करना होगा, टेलर ये सजेस्ट कर रहे हैं एक एवरेज वर्कर को लेके हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो कितना मूवमेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर वर्क को करने के टाइम वो कितना
कितना मूवमेंट कर रहे हैं. ओके, अगेन वी हैव टू नोट दैट विच इज़ द प्रोडक्टिव मूवमेंट एंड विच इज़ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट. देन नेक्स्ट हम लोगों को देखना चाहिए कि वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको एलिमिनेट कैसा करेंगे. सो एलिमिनेट करने के बाद में वो जो है कितना टाइम ले रहे हैं वो वर्क को कंप्लीट करने के लिए. इसी तरह हम डिफरेंट पीपल के साथ में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे एक जो है स्टैंडर्ड जो है हम सेट करेंगे कि ये वर्क को ऐसा ही करना चाहिए. सो इस तरह जब टेलर जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, दैट एट द टाइम ही फाउंड दैट बिकॉज ऑफ मशीनरीज, बिकॉज ऑफ टूल्स, ये क्या कर टूल्स की वजह से लाइक एक पर्सन को एक काम करने के लिए टूल्स जो भी चाहिए वो टूल्स अपने साथ में रहना चाहिए. सो अपने साथ में अगर ये टूल्स रहेगा देन ऑटोमेटिकली इट विल मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ टाइम. ओके, कैसा मिनिमाइज करेंगे वेस्टेज ऑफ टाइम? फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको. सो पढ़ाने का टाइम में मुझे क्या क्या चाहिए, लाइक बोर्ड इज़ नेसेसरी एंड द पेन, मार्कर पेन इज़ नेसेसरी. सो मार्कर पेन जो है मुझे यहाँ पे चाहिए. सो मार्कर पेन इट शुड बी केप्ट हियर और समथिंग दैट इज़ नियर टू मी. सो इसमें क्या है कि हम इसको ईजीली ले सकती है और जो भी काम करना होगा ईजीली कर सकती है. इंस्टेड ऑफ दैट ये मार्कर पेन को समवेयर एल्स वहाँ पर कहीं पे रख दिए तो क्या होगा, मुझे जाकर लेना होगा. सो इट विल वेस्ट द टाइम. ओके, जो मूवमेंट हो रहा है इट इज़ वेस्टेज ऑफ द टाइम. सो इस तरह का ये जो टाइम होगा इसको एलिमिनेट करने के लिए टाइलर ये सजेस्ट कर रहे हैं जो भी टूल्स वगैरह होगा वो टूल्स को जो है ऐसा जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे पीपल वर्क कर रहे हैं उनके पास में ही वो टूल्स को रखा रहना चाहिए. ऐसा भी करें दैट इज ऑब्जर्व करने के टाइम ये पता चला कि जो टूल्स है वर्कर्स के टेबल के नीचे रहता है तो बार बार वो क्या कर रहे हैं, वो टूल्स को निकालने के लिए बेंड कर रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अनप्रोडक्टिव वन. सो इसको भी टेलर चेंज करना चाहते थे. सो जितना भी हम ये ऑब्जर्व करने के बाद ही जो पीपल्स एवरेज वर्कर्स है ये एवरेज वर्कर्स को रख के हम ऑब्जर्व करेंगे जो थिंग्स है ये थिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट. अनवांटेड थिंग्स जो भी होगा वो अनवांटेड थिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. सो ऐसा हम लोगों को डिज़ाइन करना चाहिए. इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, ये सभी फर्नीचर को ऐसा हम लोगों को डिज़ाइन करना चाहिए जिसके थ्रू अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स क्या हो सकता है वहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं. सो बिकॉज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो है क्या करता है, टाइम एंड अदर थिंग्स को वेस्ट करता है. सो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हम मिनिमाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये मोशन स्टडी हम लोगों को करना होगा. समझ में आया बच्चों? ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द टाइम स्टडी. Next study is time study. Okay, what is time study? The manager or the organization has to set a standard time to complete a task, जो complete a work. Okay, so ये work को complete करने के लिए हम लोगों को time क्या करना होगा, select करना होगा. standard time हम लोगों को set करना होगा. ये standard time हम कैसा set करेंगे? Like again टेलर का यही सजेशन है आपको स्टैंडर्ड टाइम सेट करने के लिए. टू नो द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट द वर्क, यू हैव टू ऑब्जर्व द पर्सन दोज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट टू एक एवरेज वर्कर. तो एवरेज वर्कर को लेके आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टाइम को सेलेक्ट करना होगा, स्टैंडर्ड टाइम को सेलेक्ट करना होगा. सो अगेन टेलर क्या किए हैं, एक एवरेज वर्कर को लेके टाइम सेट करने के लिए गए हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच. सो स्टॉप वॉच आपके हाथ में रहेगा एंड वो वर्कर को काम करने के लिए आप बोलेंगे. सो वर्कर कितना टाइम के अंदर वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं वो आप देखेंगे. सो इसी तरह आप एक 100 एटलीस्ट 100 पर्सन को लेके आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. सो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम को सेट कर सकते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल टू कंप्लीट अ वर्क 100 पीपल के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप एक जो है टाइम सेट किए. फॉर एग्जांपल एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड 20 मिनट्स. ओके, सो 20 मिनट्स एवरेज वर्कर्स के साथ में आप जो काम करके स्टॉप वॉच के थ्रू आप ऑब्जर्व करके 20 मिनट्स आप फाइंड किए. सो 20 मिनट्स इज द दैट इज स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर टास्क. नाउ इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट द वर्कर्स. ओके,
कैसा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन कंप्लीटेड द टास्क विद इन 20 मिनट्स, अगर ये 20 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं, काम को क्या करते हैं 20 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं, देन द वर्कर इज नोन एज एवरेज वर्कर। क्या है? एवरेज वर्कर। वो वर्कर को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज वर्कर बोलेंगे। देन इफ द वर्कर कंप्लीट्स द एनी पर्सन कंप्लीट्स द वर्क विद इन 17 मिनट, दैट इज 20 मिनट्स के पहले ही वो वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, देन द पर्सन इज नोन एज एफिशिएंट पर्सन। क्या करने बोलेंगे हम? एफिशिएंट वर्कर बोलेंगे। ओके, देन इफ द पर्सन टेक्स 23 minutes to complete a particular task, then automatically that person is known as a inefficient person. ओके, समझ में आया आपको? टाइम स्टडी में क्या करना है आप लोगों को? टाइम स्टडी में ऑब्जर्व करने, टेलर ये सजेस्ट कर रहे हैं ऑब्जर्व करना है आपको एवरेज वर्कर को लेके टू सेट स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। ओके, सो ये एवरेज वर्कर को आप कितना एवरेज वर्कर को लेके कंप्लीट करके टाइम सेट करेंगे? एटलीस्ट 100 वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके आपको टाइम सेट करना होगा। इसमें से आपको देखना होगा मिनिमम आपको 20 मिनट्स एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए लग रहा है, तो 20 मिनट्स में जो भी वर्कर कंप्लीट करेंगे वर्क को, दैट पर्सन इज नोन एज द एवरेज वर्कर। 20 मिनट से पहले अगर आप वर्क कंप्लीट करेंगे, दैट पर्सन इज नोन एज एफिशिएंट पर्सन। देन विद इन 23 मिनट, दैट इज 20 मिनट्स के बाद कंप्लीट करते हैं, मोर देन 20 मिनट्स आप लेते हैं, देन द पर्सन इज नोन एज ए इनएफिशिएंट पर्सन। सो इस तरह आप जो है ये मोशन स्टडी के थ्रू जो है आप बता सकते हैं कि एक टाइम जो है कैसा आपको सेट करना होगा टारगेट जो है कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो इसमें से आपको क्लियरली ये भी पता चल जाएगा लाइक नंबर ऑफ वर्कर्स, आपको एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए। ओके, सो दिस इज द टाइम स्टडी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फैटिग स्टडी। Okay, next study is fatigue study. So fatigue study is nothing but to know the rest interval, to set the rest interval. So कहता है rest interval एक person के लिए हम लोगों को set करना है. First we have to determine the rest intervals, frequency of rest interval and the number of intervals in between the work. Okay, so ये हम लोगों को पता करना है. Again ये पता करने के लिए again हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये rest interval से पता करने के लिए we have to observe the average worker. एक एवरेज वर्कर को हम लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, वो एवरेज वर्कर कब जो है इंटरवल्स लेना चाह रहे हैं. दैट मीन्स एक वर्कर वर्क करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम से ही गेट टायर्ड. ओके, ही गॉट टायर्ड. सो जो पर्सन कब टायर्ड होना शुरू होता है वहाँ से हम शुरू करेंगे. एक पर्सन काम करना शुरू कर लिए एवरेज वर्कर, सो वो वर्कर कहाँ पे टायर्ड हो रहे हैं ये हम लोगों को देखना होगा. वो टायर्ड होने के बाद कितना मिनट वो रेस्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो रीगेन कर रहे हैं, अपना फ्रेशनेस को रीगेन कर रहे हैं. ये दोनों हम लोगों को टाइम को क्या करना चाहिए? आपको नोट करना चाहिए. सो ये नोट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पर्सन कितने बार इंटरवल चाहता है, कितना बार रेस्ट चाहता है, वो रेस्ट देने के बाद कितने मिनट में वो जो है फ्रेशअप हो जाता है नेक्स्ट अपना काम करने के लिए. सो ये स्टडी करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेट करेंगे कि इंटरवल कितने बार हम लोगों को दिया जाए, एक पर्सन को कितना रेस्ट हम लोग दिया जाए, नेक्स्ट वो जो है अपना एनर्जी गेन करके काम करने के लिए. सो ये भी जो है एक ही वर्कर से नहीं, आप डिफरेंट वर्कर्स के साथ में आपको क्या करना होगा? स्टडी करना होगा. स्टडी करने के बाद ही आप कर सकते हैं. दैट मीन्स साइंटिफिक टेक्निक्स आपको बता रहा है. यहाँ पे कोई भी मैनेजर का जो इंट्यूशन होगा या मैनेजर का विल एंड विशेष जो भी होगा उसके थ्रू या मैनेजर का प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू आप कुछ भी नहीं करेंगे. जो भी वर्क आप करेंगे, जो भी स्टडी जो भी आप करेंगे, आप स्टडी करके ही ईच एंड एवरीथिंग को सेट करेंगे. सो आप यहाँ पर भी ये जो है इंटरवल जो देना चाहिए वो भी क्या करेंगे? आप स्टडी करेंगे. लाइक आप जो है अब एग्जाम्पल आप स्कूल में आ रहे हैं तो आपको जो है इंटरवल आपको मिल रहा है, लंच टाइम आपको लंच ब्रेक मिल रहा है, आप 6 घंटा स्कूल में रह रहे हैं. सो 6 आवर्स में आपको कंटिन्यू 6 आवर्स आपको पढ़ाते जाएंगे तो आप बोर होंगे कि नहीं, या आप टायर्ड फील करेंगे कि नहीं?
सो डेफिनेटली आप टायर्ड फील करेंगे। सो ये जो टायर्डनेस है उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको अगेन फ्रेश लाने के लिए आपको जो है इंटरवल दिया गया है, कुछ पीरियड के बाद जो है आपको गैप दिया जाता है। सो टू क्रिएट अ फ्रेशनेस अमॉन्ग यू, सो आपको क्या करना है, वहाँ फ्रेशनेस क्रिएट करने के लिए आपको अगेन जो है जो टायर्ड हो गए हैं वहाँ से आपको थोड़ा सा रेस्ट देकर देन आपको जो है वहाँ पे रीगेन करना चाहते हैं, तो उस लिए जो है आपको ये इंटरवल दिया गया है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी एक पर्सन जो है कंटिन्यूस 8 आवर्स और कंटिन्यूस 6 आवर्स वो काम नहीं कर सकते हैं। सो उनके लिए हम लोगों को रेस्ट इंटरवल देना ज़रूरी है। सो ये रेस्ट इंटरवल हम ऐसे ही नहीं देख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड दैट कहाँ पे हम लोगों को चाहिए। सो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 शिफ्ट आर देयर एंड एक शिफ्ट काम करने के बाद एक पर्सन टायर्ड हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में एंड थर्ड शिफ्ट में पर्सन का काम जो है फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली सेकंड शिफ्ट क्या हो जाएगा, वो पर्सन के लिए रेस्ट मिल जाएगा। सो सेकंड शिफ्ट में वो पर्सन रेस्ट लेके थर्ड शिफ्ट जब करने आएगा देन ऑटोमेटिकली वो एनर्जेटिक के साथ में रिटर्न आएंगे काम करने के लिए। सो ये देखना टू सेट अ रेस्ट इंटरवल, द सेट अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, वी मस्ट thoroughly study the worker. So this study is known as a fatigue study. We move on to the next technique, that is mental revolution. So mental revolution, I already just given a hint. So mental revolution here, change in mental attitude of workers and management. So change in mental attitude of workers and management towards each other. Like in an organization, there are 2 groups of people. So 2 groups of people, who are the 2 groups of people? One is management group, another one is workers group. So workers group and management groups always ये suspicion में रहते हैं, suspect में रहते हैं, that is each are rivals, both are rivals to each other. That means workers ये सोचते हैं कि खाली हम यहाँ पे वर्क ही कर रहे हैं, हमको और कुछ नहीं हो रहा है, that is मैनेजमेंट जो है जस्ट हम लोगों को ओवर बर्डन वर्क ही दे रहा है, पेमेंट भी कम दे रहा है, वर्क ज़्यादा दे रहा है। मैनेजमेंट क्या सोचते हैं, वर्कर्स को कुछ भी करते रहना चाहिए, वर्कर्स जो है काम करने के लिए ही आए हैं, तो इस तरह सो ये थिंकिंग जो है, ये थिंकिंग को पूरा हटाना चाहिए। टेलर सजेस्टेड दैट कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो ये कोऑपरेशन कब हो सकता है, जब हम अपना मेंटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ईच अदर ये जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, कोऑपरेशन क्रिएट नहीं हो सकता है। देन हमें ये देखना चाहिए, एक सिस्टमैटिक थिंकिंग हमारे अंदर आना चाहिए, वे फील करना चाहिए कि नहीं, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। व्हेन वी आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो हम लोग यहाँ पे राइवल्स की तरह नहीं रहना चाहिए, एक साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ में अगर हम काम करेंगे सो डेफिनेटली वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इजीली गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो हियर मेंटल रेवोल्यूशन में टेलर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बोथ द ग्रुप, दैट इज मैनेजमेंट ग्रुप एंड वर्कर्स ग्रुप, they have to change their attitudes towards each other। जो भी आउटलुक होगा वो सारा आउटलुक आप पूरा चेंज करेंगे एक दूसरे के लिए, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेंटल रेवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो भी टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा टॉपिक था, एंजॉय किए हैं। सो एंजॉयमेंट के साथ अगर आप पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। सो हर टॉपिक को, हर एजुकेशन जो भी होगा, हर सब्जेक्ट जो भी होगा, आप एंजॉयमेंट के साथ में लेके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ट्राई दिस वन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम मीट करेंगे, लेफ्ट आउट जो भी टेक्निक्स होगा टेक्निक को हम पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।